Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Other Senior Secondary School, Khaisargarh. In previous classes, we discussed about properties of subtraction and division. And today we start exercise 2.c. It's based on subtraction and division. Its first part, question number A. Take the correct option. Here we write correct option. If A is equal to 55, B is equal to 30, then A minus B, it means 55 minus 30. Then we find result 25. Then our correct option is B, 25. And question number second, if A is equal to 35, B is equal to 0, then A minus में B. 35 minus 0, then we find result the number itself, that is 35. Then our correct option is A, 35. Next question third, if A is equal to 0, B is equal to 49, then A minus में B is equal to, see here, A is equal to 0 and B 49. Then we find A minus में B, 0 minus 49. Then we find result minus 49. But minus 49 it not include into whole numbers. Our chapter about whole numbers start from 0 and all positive numbers. Then our correct option is C, not defined. Question 4. If A is equal to 20, B is equal to 13, C is equal to 2, then A minus B minus C. First we solve bracket and then whole number. B minus C, 13 minus 2, 9. And 20 minus 9, 13 minus 2, 11, and 20 minus 11, 9. Then our correct option is 9. First we solve this A minus B minus C. First we solve bracket. B minus C, 13 minus 2, 11 and 20 minus 11, 9. Our correct result is 9. Next part, if x is a whole number, then x divided by 1. When any number divisible by 1, then the result is number itself. Okay students? Then we find result x. जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट, फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड. फर्स्ट पार्ट 80, यहाँ पे बॉक्स दे रखा है हमें, एंड देन रिजल्ट इज़ 102. देन यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि रिज़ल्ट है वो ये आए, तो इसके लिए क्या करेंगे 102 में से 80 माइनस करेंगे, देन अपना ये रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा 2, 10 माइनस 8, 2. देन इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे 22. अब देखो 22, अब 22 और 80 को जब ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 102.
नेक्स्ट पार्ट 99 माइनस 63, देन बॉक्स दे रखा है हमें, देन वी फाइंड रिजल्ट 22। 99 माइनस 63 36। अब 36 में से क्या माइनस करें कि 24 आ जाए, तो इसके लिए वही सेम प्रोसेस, 36 माइनस 24, then we find 2 1 12, then put 12 in the box. Okay students, next part, if a is any non-zero whole number, then non-zero whole number है तो फिर a को डिवाइड करेंगे किससे कि 1 आए। जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब आता है 1, तब यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट a। एंड फोर्थ पार्ट 36 डिविजिबल बाई 6, देन 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6 मल्टीपल बाय 6 36, 6 1 जा 6 36, then our result 6 is a whole number, but 35 divisible by 6, then we find 35 divided by 6, then its result 5.83 is not a whole number। तो ये तो whole number है, ये whole number कैसे है, क्योंकि 6 यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और कोई फ्रैक्शन डिवाइड पॉइंट में नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे 35 है तो इसका ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है ये नंबर, ठीक है। पॉइंटों में इसका आंसर आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। जो 6 है वो 35 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करा, तो इसका जो रिजल्ट है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है। तो वोल नंबर में क्या होते हैं, only positive number without any fraction। and fifth part 0 divided by any non-zero whole number is, then our result is also 0। solve the following part C, perform the following subtraction and check your result by corresponding addition। इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 7 माइनस 9, देन वी फाइंड, क्या करेंगे इसके लिए, 7 स्मॉल नंबर है और नीचे की साइड क्या है 9, 1 कैरी लेंगे यहाँ से। 17 माइनस 9 8, एंड यहाँ पे कितना रह गया, फिर 0 था यहाँ पे, इसने भी यहाँ लेफ्ट साइड से कैरी लिया तो इसका 10 हो गया था, और 10 के बाद हमने एक यहाँ पे कैरी ले ली तो इसका हो गया, यहाँ पे कितना रह गया 9, 9 माइनस 9 0, and then on the place of 4 remaining 3, then we can take carry from left side, then the number is 13, 13 minus 9 4, and next remain here 2, 2 minus 0 2। okay students, 1 minus 1 0, then our result is same। तो अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो अपना क्या रिजल्ट आएगा, ये बिग वैल्यू 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, 17 का 7 और फिर 9 प्लस
1 कैरी 10, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये ऊपर वाली वैल्यू, बिग वैल्यू। तो इस प्रकार हमें सब्ट्रैक्शन करके फिर ये देखना है कि इनका ऐड करेक्ट हो रहा है क्या, ठीक है। एंड नेक्स्ट सी पार्ट, सब्ट्रैक्ट 10 - 3 7, 9 - 7 2, and 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 9 0, and in the last is 0। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 1 तो यहाँ पे कैरी ऐड कर ली ना इन्होंने, तो ये 0 ही आएगा इनका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे ये 1 राइट नहीं करना, 0 आएगा, ये बाई मिस्टेक 1 है। एंड नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या बोला है देखो, इफ a + b + c = a + b + c, then check whether the sum of 3 consecutive even numbers begin with 42 is same। तो यहाँ पे 3 कंजुगेटिव नंबर लेने हैं इवन, लगातार इवन नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं 42 से, तो 42, 44 और 46। 42 के बाद में इवन नंबर कौन सा है, 44, और 44 के बाद 46, और फिर इनको इस वाले वैल्यू में पुट करके इनका रिजल्ट फाइंड करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या। देखिए कैसे करेंगे इसको। 3 consecutive even numbers began with 42, that is 42, 44, 46 according to क्वेश्चन में ये हमें दे रखी है क्वेश्चन। वेरिफिकेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a + a डैश b एंड c। a क्या लेंगे 42, and we take b is 44 and c is 46, then put this value in this equation, then we find result 42 + 44 86 plus 46, यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 44 + 46 90 and plus 42, then we find same result 132। तो दोनों साइड सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सी पार्ट, डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वांटेंट एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। तो इनके हमें क्वांटेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके, ठीक है। सभी पार्ट सेम है, डिवाइड करना है सभी में। डिवाइड कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। देखो 6971 डिविजिबल बाय 47, सी है 47 से डिवाइड करें, यहाँ पे पहले किस पे जाएगा 42 पे, जो ये ज़्यादा हो रहा है तो पहले जाएगा फर्स्ट 1 पे, तो यहाँ पे लग जाएगा 47, 9 - 7 2 एंड 6 - 4 2, तो रिजल्ट कितना 22 आ गया, ठीक है। फिर ऊपर से क्या लेंगे 7, ठीक है। फिर ये किस पे जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं, पहले 4 से में कुछ आइडिया लग जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 डिजिट ले लेते हैं पहले, ठीक है।
अब फोर वाले टेबल में देखो 22 कौन से नंबर पे आता है? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इट मीन्स ये 4 पे जाएगा या फिर 5 पे। तो यहाँ पे 27 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ गया 188, और 5 से करोगे तो 135। तो 135 क्या है, ज़्यादा है ना, 1 यहाँ पे 2 तो 27 है और यहाँ पे 235 आ रहा है। इसका मतलब 5 तो नहीं, 5 पर तो नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा 4 पे। तो यहाँ पे राइट करेंगे 4 एंड देन 188, then subtract 227 minus 188, then we find result 39। तो ये क्या जाएगा 39, फिर 39 आ गया, फिर ऊपर से क्या लेंगे 1, देन 399, 391। तो ये किस पे जाएगा 4 को, 4 की टेबल में देखो 39 किस पे आता है 4 10 जा 470 आ गया। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर 9 पे करोगे तो फिर भी ज़्यादा आ रहा है, फिर 8 पे करोगे। ठीक है, 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 376। तो यहाँ पे लिखेंगे 376, देन डिवाइड, देन वी फाइंड रिजल्ट 15। तो अभी 15 हो गया है। ठीक है, रिजल्ट आ गया 15। तो अगर हमें पॉइंट्स इतना ही फाइंड करना है, आगे कोई नंबर नहीं है, सभी हो गए यहाँ पे, तो रिजल्ट इतना भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर में 15 भी राइट कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंटों में आगे और भी निकालना है तो हम 2 पॉइंट तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट आप लगा के ऊपर फिर यहाँ पे क्या राइट करोगे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितने ही 0 ले सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम्स। देन नेक्स्ट ये कितने पर जाएगा 150 है तो 3 पे 141, देन इट सब्ट्रैक्ट 9, फिर एक बार फिर 0 ले लेंगे, फिर ये जाएगा 1 पे, देन 90 माइनस 47 43। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक करना चाहते हो तो यहाँ तक कर सकते हो 15 तक, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 15। और अगर 2 पॉइंट तक सॉल्व करना चाहते हो तो आगे इस तरह से ऊपर पॉइंट लगा के नीचे आपको 0 राइट करनी है। ठीक है, इस तरह आपको डिवाइड करना है सभी पार्ट थर्ड क्वेश्चन के। नेक्स्ट डी पार्ट सेम थर्ड क्वेश्चन। 400 डिवाइड किसको कर रहा है 93 575। फर्स्ट 2 पे 400 2 जा 800, then by subtraction we find 135 and take 7, and next it goes to on place of 3, then subtraction is 157 and we take 5 and then it divisible by 3, then we find 1200, then its subtraction is 375। तो उसके बाद में आगे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे,
तो आप इतना भी कर सकते हो 3075 पे। अगर आपको पॉइंट्स आगे भी रिजल्ट फाइंड करना है तो पॉइंट लगा के फिर उसके बाद में 0 आगे ले लेनी है, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट तक मैंने किया है तो इसका रिमाइंडर आया 300। और अगर आप यहाँ तक सॉल्व करोगे तो आएगा 375। ओके स्टूडेंट, एंड क्वाड्रेंट 233। ऑल पार्ट्स आर सेम। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ए पार्ट में देखो क्या करना है। 65007 डिविजिबल बाय 1। किसी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ये नंबर 6577007। और बी पार्ट में और किसी नंबर को अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे वोल नंबर से तो रिजल्ट फाइंड करेंगे 0, तो इसका आ जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट में इन दोनों को ऐड करके पहले क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे। 5720 को डिवाइड करोगे 10 से, फिर उसमें 981 ऐड करोगे। नेक्स्ट पार्ट, सी हेयर, सी पार्ट। पहले हमें क्या करना है, पहले क्या करते हैं डिवाइड। तो पहले ये ये राइट मेथड दे रखा है और ये रॉन्ग मेथड, दोनों में डिफरेंस देखो पहले। तो राइट मेथड में क्या होता है, इसको करेक्ट तरीके से एक तो आपने कर दिया, पहले इनको ऐड कर दिया और फिर उसके बाद में जो रॉन्ग मेथड है उसमें क्या किया आपने, पहले ऐड कर दिया। तो 6701 डिविजिबल बाय 10, तो जो इसका रिजल्ट है वो क्या गया, दिस। तो आपको इस तरह से नहीं करना, क्योंकि पहले ऐड नहीं करते, पहले क्या करते हैं डिवाइड। इसके लिए एक कंसेप्ट है वो मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगा। तो पहले डिवाइड करना है और फिर जो रिजल्ट आता है क्वाड्रेंट, उसमें जो नंबर हमें दे रखा है उसको ऐड करना है। देन वी फाइंड रिजल्ट 1553। तो इनके लिए तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड या प्लस या माइनस या ब्रैकेट सोलो। तो इनका क्या है, एक रूल है, ठीक है, बोर्ड मास, जिसको क्या बोलते हैं बोर्ड मास, ठीक है। तो इस रूल के अंदर क्या है देखो, आगे सभी क्वेश्चन इसी के बेस पे है। बोर्ड मास, बी मीन्स ब्रैकेट, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास। बी इट मीन्स ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने काइंड्स की होती है, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट ओ मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर कितने का, उसका 3 का, 2 का 3 का या फिर स्क्वायर रूट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। डी मीन्स डिवाइड एंड एम मीन्स मल्टीप्लाई एंड ए मीन एडिशन एंड एस मीन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट दे रखी है तो पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, चाहे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को और फिर अगर किसी का ऑर्डर दे रखा है जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब, तो इनको सॉल्व करेंगे पहले एंड फिर डिवाइड। और फिर उसके बाद डिवाइड के बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद एडिशन,
एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद में एडिशन। तो इस रूल का आपको ध्यान रखना है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, एडिशन है तो एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको अगर इस मेथड से करोगे, पहले आपने प्लस कर दिया उसके बाद में डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पहले इस नंबर को डिवाइड करोगे और फिर जो क्वाटाइंट आता है उसमें ऐड करोगे। सी पार्ट क्लियर एंड रूल बॉडमास रूल इज ऑल्सो क्लियर। पार्ट ई में देखो ब्रैकेट दे रखी है पहले, तो आप पहले डिवाइड नहीं करोगे, ये नंबर दे रखा है, और फिर डिवाइड 648 माइनस 39। तो पहले में पता है बॉडमास रूल से कि पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे। ये ब्रैकेट दे रखी है, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 648 माइनस 39, रिजल्ट आएगा 609। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, डिवाइड अच्छे से कंप्लीट ऐसे करोगे डिवाइड, और फिर रिजल्ट आएगा 53 क्वाटाइन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको एक्सरसाइज 2.C के 4 पार्ट कंप्लीट करने हैं। इट्स योर होमवर्क। स्टे होम, स्टे सेफ।